لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير رؤية، الذي لم يزل قائما دائما أبدا، إذ لا سماء ذات براج ولا ليل ناج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين بالقرآن. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وجلالتهم وطهارتهم وولايتهم وعظمتهم وانتشهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الإمام حسين عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم. إني لم أخرج بشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي صلى الله عليه وآله. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير على سيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. خانوادہ عصمت و طہارت پر آواز بلند سلامات پڑھ کے بتائیں کہ مجلس کا آغاز ہو گیا ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد. بزرگان قوم اور جوانان قوم، عزاداران امام مظلوم کربلا اور ماتمداران سید الشہداء، موالیان حیدر کرار، عاشقان رسول و آل رسول علیہ السلام. دیکھیے گزارش کوئی مشکل نہیں ہے، بند کرنے آواز پہنچنی چاہیے، تھوڑا سا صلوات پڑھ دیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. جیسا کہ آپ ابتدائی مرحلے ہی میں قبلہ ضلع بحث سے بات رہے الحمدللہ یہاں کے قبلہ ہمارے السلام علیکم مہذب مخلص اور شریف اللہ سے بحث سے باتیں میں الحمدللہ کی شخصیت اور میں تو چھوٹا سا طالب علم خدمت کی ہوگی وہی ہو سکتا ہے کہ انہیں بیانات و کلمات کا کچھ ماخذ ہے. میں
ابتدائی کلامی میں آپ نے یہ محسوس اس بات کو کر لیا ہوگا کہ مسلسل ذکر مولا کی وجہ سے تھوڑی سی آواز گرفت ہے، مگر ظاہر ہے کہ انسان ہے تو لگی رہتی ہے، آواز تھوڑی گرفت ہے، مگر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ صرف آواز گرفتہ ہے، عقیدہ بالکل آزاد ہے۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ وہی پڑھوں جو پڑھتا ہوں اور ویسے ہی پڑھوں جیسے پڑھتا ہوں، غور کریے، وہی پڑھوں گا انشاءاللہ جو پڑھتا ہوں۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ اور انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ ویسے ہی پڑھوں جیسے پڑھتا ہوں، اس لیے کہ میرا اپنا انفرادی اور ذاتی مزاج ہے کہ نہ میں مجمع دیکھ کے پڑھتا ہوں اور نہ لفافہ۔ ایک صلوات پڑھنے محمد وآل محمد۔ آپ کے یہ اس لگا والے کا ایک مستقبل، اور صرف مستقبل ہی نہیں بلکہ روشن مستقبل اس وقت کی سرزمین پر یہاں کے لیے محنتیں کر رہا ہے تاکہ یہاں کی سرزمین کو چار چاند لگا سکے۔ میرے چھوٹے بھائی علی جناب مولانا رہبر علی زیدی صاحب امی، ان کے حکم ان کے اصرار پر ظاہر سی بات ہے جس لائق تھا میں حاضر ہو گیا۔ مائک کو ویسے ہی کرتے جیسے تھا، ویسے ہی کرتے جیسے تھا، سلوات پڑھ دے کیونکہ اس طرح صلی علی محمد وآل محمد۔ میں پڑھتا رہتا ہوں، آپ سنتے رہیے، کیونکہ اس میں تو مشکل ہوتی رہے گی، یہ دنیا کے بنائے ہوئے ہیں اور جنہیں دنیا بناتی ہے ان کی مشکل یہ ہوتی ہے۔ یہ کیسا کیسا ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، آپ تک آواز پہنچا ہی دے گا۔ صلی علی محمد وآل تو ظاہر سی بات ہے میرے چھوٹے بھائی کے اصرار پر جس لائق ہوا، چونکہ حالات ویسے نہیں تھے مگر چونکہ ان کی محبت اور ایک رشتہ ہمارا ایسا رہا ہے کہ انکار نہیں کر سکتا، اور ظاہر سی بات ہے حالات کیسے بھی ہوں ذکر مولا کے لیے تو انکار ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ انسان اگر اپنی اصل سے ہٹ جاتا ہے تو بکھر جاتا ہے۔ ہماری تو تخلیق ہی ذکر کے لیے ہوئی ہے، اگر اس سے ہٹ گئے تو زندگی میں بچنا کیا ہے۔ ایک صلوات اور پڑھ لیں۔ ابتدائی کچھ لمحات میں نے اس لیے تھوڑا سا تمیزن اور دو چار جملے کہہ دیتا ہوں تاکہ اب تک جو فرش اعضاء پر نہیں آئے ہیں وہ مکمل طور پر یہاں آ جائیں، اور پورے طریقے سے مجلس کا آغاز ہو چکا ہے۔ جو لوگ باہر رہتے ہیں ان کے لیے میں اکثر ایک ہی جملہ کہتا ہوں کہ اس جنت میں چلے آئے۔ یہ جنت تو وہ ہے کہ جس کے دروازے پر رضوان بھی نہیں ہے۔ یہاں آنے میں دیر نہ کیا کریں۔ وہ جنت وہ ہے کہ جہاں آپ جائیں گے تو رضوان پوچھے گا، مگر یہ جنت وہ ہے، یہ شرف اہل بیت نے اس فرش اعضاء کو دے دیا کہ یہاں رضوان بھی نہیں ہے پوچھنے کے لیے کیا لے کر آئے ہو۔ بات کو آپ تک پہنچاؤں گا، اور اس لیے بھی روایت ایک یوں بھی ہے سرکار، ایک روایت یوں بھی ہے، سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین پر جس وقت جس جگہ پر ہمارا ذکر ہو رہا ہو، میں قبلہ کی تائید میں پڑھوں گا، ساری باتیں انشاءاللہ بطور اصلاحی ہوں گی۔ مولا فرماتے ہیں زمین پر جس وقت جہاں جس جگہ پر ہمارا ذکر ہو رہا ہو کائنات میں، اس وقت اس سے بہتر جگہ کوئی نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ اچھی جگہ کوئی ہوتی نہیں ہے، تو اس لیے باہر رہنے والوں کے لیے ایک اعلان یہ بھی ہے کہ جلد سے جلد آ جائے۔ اس وقت آپ کے بستر، آپ کی آرام گاہ، آپ کی بلڈنگیں، آپ کے گھر، آپ کی آرائشیں، آپ کے مکان، آپ کی عمارتیں، یہ سب کے سب اس سے چھوٹے ہیں۔ یہ سب کے سب اس سے چھوٹے ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ محل بنوا لیجئے، بلڈنگیں کھڑی کر لیجئے، عمارتیں بنوا لیجئے، اچھے اچھے بستر لگوا لیجئے، بڑی بڑی عمارتیں بنوا لیجئے، مگر کوئی ممکن نہیں کہ شہزادی آ جائے ایک ٹوٹا ہوا فرش اعضاء بچھا لے، جنت چھوڑ کر آ جائے گی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ زندہ باد۔ میں اس تھکی ہوئی اور ٹوٹی پھوٹی آواز سے کوشش کروں گا کہ آپ تک ویسے ہی پہنچا۔ بس یہ گزارش ہے کہ آپ تھک کر نہ سنیے گا۔
इंशाअल्लाह स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे अपनी बात को पहुंचाऊंगा। और यही होता है कि जब बच्चा छोटी क्लास में होता है उसके बाद और दर्जा बढ़ता है, और दर्जा बढ़ता है, और दर्जा बढ़ता होता है। एक मंजिल आती है कि कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है। इसका मतलब ये है कि जब बात आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है तब जाकर बात बनती है। मैं यही बताना चाहता हूँ कि बात आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, क्योंकि एक रात में कोई करोड़पति नहीं होता। एक रात में कोई करोड़पति हो ही नहीं सकता। और अगर झटके से हो भी गया, अरे सुन रहे हैं ना, अगर झटके से हो भी गया, वैसे तो मुमकिन में नहीं है, मगर अगर झटके बटके से हो भी गया और उसने अपने लिए महल बनवा भी लिए, सोने चांदी हीरे जवाहरात के बिस्तर लगवा भी लिए, यकीन जानिए नींद उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक उसकी मर्जी न हो। सलावत पढ़ने मोहम्मद मैंने जो कार्य किया कि थकी भारी मांदी हुई आवाज से जिस तरह भी होगा जिक्र अहले बैत आप तक इंशाअल्लाह पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इमाम मजलूम करबला का वो फिक्रा जो इमाम ने मदीने से निकलते हुए कहा, मैंने उसको सरनामा कलाम करार दिया। गुज़िश्ता अय्याम और अशरा उला में मैंने इसी को सरनामा कलाम करार दिया। इसी के ज़ैल में हमने इस मौजू का इंतखाब किया था। वो मौजू था करबला अमूद शरीयत। गौर करिए आप, करबला अमूद शरीयत के उन्वान से गुफ्तगू की है। अब आप लफ्जों पर गौर कीजिएगा। इमाम ने कहा करबला क्यों अमूद शरीयत है। बच्चों को ये समझा दूं कि करबला अमूद शरीयत है तो क्या है अमूद शरीयत। अमूद अरबी जबान में कहा जाता है पिलर को। और फरमाए पिलर जो लगाया जाता है बिल्डिंगों में, इसे कहते हैं अमूद। ये अमूद इसलिए लगाया जाता है ताकि आपकी बिल्डिंग, आपकी इमारत रुकी रहे। और इसे अगर और करीब होकर समझना है तो इस तरह समझिए, नबी ने फरमाया अस्सलातो अमूदुद्दीन, नमाज दीन का सतून है। यानी नमाज दीन का सतून है, दीन नमाज पर टिका हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर दीन से नमाज को हटा लिया जाए तो दीन जमीन पर आ जाए। भाई गौर करिए आप, अगर नमाजों से दीन को, अगर दीन से नमाजों को निकाल लिया जाए तो दीन जमीन पर आ गया। हमने कहा करबला अमूद शरीयत है। जिस तरह अगर दीन से नमाज को निकाल लिया जाए दीन जमीन पर आ जाए, वैसे ही अगर शरीयत से करबला को हटा लिया जाए पूरी शरीयत जमीन में उस पर जाए। सलावत पढ़ने मोहम्मद सलामत नहीं, इतना रिस्पॉन्स बहुत है मेरे लिए। बस आप इसी तरह सुनते रहिए, काफी है। अगर करबला को शरीयत से हटा लिया जाए तो शरीयत जमीन पर आ गई। क्यों? इसलिए कि करबला मुहाफिज, करबला मुहाफिज शरीयत, करबला मुहाफिज दीन। नमाजों को बचाया करबला ने, रोजे की जमानत करबला है, हज खुम्स ज़कात इन तमाम उमूर को बचाने वाली करबला है। अगर करबला न होती तो क्या होता? गौर करिए आप, अगर करबला को निकाल लिया जाए तो बचता है कुछ नहीं। इमाम ने कहा इन्नी लमखरुज अशरन वला बतरा, मैं जो निकल रहा हूँ। अच्छा, ये जो बहस चल रही है ना, जो इमाम ये बयान कर रहे हैं, उस वक्त का ये मंजर है कि जब मोहम्मद हनफिया इमाम के पास आए, इमाम मदीना छोड़ना चाहते हैं, निकलने का इरादा करते हैं, इरादा कर रहे हैं। उस वक्त मोहम्मद हनफिया कर पूछते हैं कि क्या इरादा है, कैसे जाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। उस वक्त मौला ने कहा कि मैं निकल रहा हूँ। इन्नी लमखरुज अशरन वाला बतरा, गौर फरमाइएगा, मैं ना अशर के लिए निकल रहा हूँ न बतर के लिए। तशरीफ फरमाए, ना अशर न बतर। क्या मतलब? अशर और बतर का मतलब होता है गुरूर और तकब्बुर। गौर फरमाइए, तकब्बुर कहते हैं अशर को। इसका मतलब ये कि इमाम बताना चाहते हैं कि जमाने में तकब्बुर फैल चुका था, उसे मिटाने के लिए निकल रहा हो। इमाम बताना चाहते हैं कि मैं इसलिए निकल रहा हूँ कि तकब्बुर उरूज पर है, मैं उसे मिटाने के लिए निकल रहा हूँ। आगे बढ़िए, क्या कहते हैं इमाम? वइन्नमा खरजतु, यहाँ नफी की कि मैं इसलिए नहीं निकल रहा हूँ। यहाँ मुस्बत में आते हैं कि इसलिए निकल रहा हूँ। क्यों? इन्नमा खरजतु लितलबी इस्लाह फी उम्मत जद्दी, मैं इसलिए निकल रहा हूँ ताकि अपने जद की उम्मत की इस्लाह कर सकूँ। गौर तो करें आप, मैं इसलिए निकल रहा हूँ ताकि मेरे जद की उम्मत की इस्लाह हो जाए। इमाम का एक जुमला बता रहा है, इस्लाह करने के इरादे से निकलना बता रहा है। इसका मतलब ये है कि जमाने में फसाद फैल चुका था, फसाद फैल चुका था, उसे मिटाने के लिए सवाल करते बाबा
ठीक होता रहेगा, आप मेरी तरफ मुतवज्जह रहेगा। और उधर रोड पर भी इधर उधर ना देखिए, वो तो 24 घंटे चलता है, मैं सिर्फ 30 या 35 मिनट के लिए आया हूँ, लिहाजा मुझे देख लें इस वक्त, वहाँ बाद में देखते रहिएगा। इमाम ने कहा क्या इसलिए निकलो ताकि गुरूर तकब्बुर को मिटा दिया जाए। और एक लफ्ज़ पर करना, यहाँ इमाम ने जो लफ्ज़ रखा कि मैं उम्मत की इस्लाह के लिए निकल रहा हूँ। गौर की कभी आपने तवज्जो करने की कोशिश की? इमाम ने कहा मैं उम्मत की इस्लाह के लिए निकल रहा हूँ। मुझे बताइए आप 60 डिग्री के हालात क्या थे इस वक्त इमाम निकले हैं, हालात क्या थे? का हालात ये थे कि यजीद शराबी ऐलान कर रहा था, कोई वही नहीं आई, कोई आयत नहीं है, कोई कुरान नहीं है, कोई शरीयत नहीं है, कोई दीन नहीं, ये सब बनी हाशिम का खौफ है माज़अल्लाह। तो ये कह कौन रहा था? मेरे तरफ मुतवज्जह रहना जवाब, कह कौन रहा था? यजीद कह रहा था ना, भाई यजीद फसाद बर्पा कर रहा था। और इमाम ने क्या कहा? मैं उम्मत की इस्लाह के लिए निकल रहा हूँ। गौर तो करें, फसाद कौन बर्पा कर रहा है? यजीद। इमाम क्या करे? मैं उम्मत की इस्लाह के लिए निकल रहा हूँ। अक्लन बात होनी क्या चाहिए, उसूलन बात होनी क्या चाहिए? इमाम को कहना क्या चाहिए? उसूल और ज़ाबिता ये कहता है कि उस वक्त वो हालात को पेश नजर रखने के बाद इमाम को ये कहना चाहिए था, ये बताना चाहिए था कि मैं यजीद की इस्लाह के लिए निकल रहा हूँ, ये बिगड़ गया है। अरे गौर कर रहा है, यजीद की इस्लाह के लिए निकल रहा हूँ, मगर इमाम ने यजीद का नाम नहीं लिया, मैं उम्मत की इस्लाह के लिए निकल रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि इमाम क़यामत तक के आने वाली नस्लों को बताकर जाना चाहते हैं कि यजीद वो है जिस पर नामे हुज्जत हो चुका है। अब ज़माना समझ लो, आप उन्हें रज़ी अल्लाह कहे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नामे हुज्जत हो चुका है, अब तुम्हारे रज़ी अल्लाह कहने से यजीद बच नहीं सकता। सलवात है भाई भाई। दो चार मिनट मेरे साथ आ जाए, मैं आ जाऊंगा और अल्फाज को बहुत आसान कर दूंगा और बहस भी बहुत आसान हो जाए। इसका मतलब हम बताना चाहते हैं कि यजीद पर इत्माम हुज्जत हो चुका, इसके लिए इस्लाह का खाना बंद हो चुका है। अब इसके लिए कोई इस्लाह नहीं है, यजीद के लिए कोई इस्लाह नहीं है, इसके लिए इस्लाह है। मैं तो उम्मत की इस्लाह के लिए निकल रहा हूँ। देखिए अगर जुमला तक पहुँच गया तो इस तालिब इल्म को अपनी दुआ हमेशा याद रखिएगा। इमाम ने कहा मैं उम्मत की इस्लाह के लिए निकल रहा हूँ। आखिर बताना क्या चाहते हैं ना, ज़माने को पैगाम क्या देना चाहते हैं? निकल यजीद रहा है, इस्लाह उम्मत भी हो रही है, इस्लाह उम्मत भी है, निकल यजीद रहा है, फसाद यजीद पर कर रहा है, इस्लाह उम्मत भी हो रही है। इमाम क़यामत तक आने वाली नस्लों में ये पैगाम देकर जाना चाहते हैं कि उम्मत का जिक्र इसलिए किया कि अगर उम्मत सुधर गई तो यजीद ऐसा खलीफा नहीं बनेगा। और बाबा से गले सलवात पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले बार इस बात को कह चुका हूँ कि आवाज, अच्छा ये आवाज के साथ मसला होता क्या है? जिक्र मौला सफर और उस पर होता है कि मोहब्बत में लोग बिरयानी खिलवा देते हैं, इसके लिए चलता है तो मोहब्बतों की नजर हो जाती है आवाज। तो इमाम क्या बताना चाहते हैं? बताना ये चाहते हैं कि अगर उम्मत राह रास्त पर हुई, उम्मत में यहाँ गौर और फिक्र करने की सलाहियत हुई तो फिर कभी यजीद जैसा हाकिम ही नहीं बनेगा। फसाद कैसे बर्पा होगा जब यजीद जैसा हाकिम नहीं बनेगा? इसलिए इमाम ने कहा कि इस पर तो इत्माम हुज्जत, ये खड़ा, इस पर कोई इत्माम नहीं होगा। मगर क्या करें, अजीब अजीब लोग इसे इमाम असल से खारिज करके जा रहे हैं, लोग उसी के बैनर बनवा रहे हैं। रज़ी अल्लाह थे, रज़ी अल्लाह थे, इन्होंने रज़ी अल्लाह, उन्होंने रज़ी अल्लाह, ये रज़ी अल्लाह, वो रज़ी अल्लाह। साली की तो बात है, सबने सुना। रज़ी अल्लाह कहा गया, बाकायदा तौर पर एक पोस्टर लगाकर यजीद को रज़ी अल्लाह कहा गया। अच्छा हम सभी लोगों ने कहा मौलाना तो क़यामत हो गई, यजीद को लोग रज़ी अल्लाह कह रहे हैं। यकीन मानिए में बिल्कुल परेशानी नहीं हुई। अगर ये जुमला पहुंच गया तो सन्नाटा टूटेगा। खुमैनी साहब बिल्कुल परेशानी नहीं हुई। कावा जाकिर नायक ने कह दिया, कावा साहबा
सहाबा की जो हामी है उन्होंने यजीद को रजी अल्लाह कह दिया, इन्होंने रजी अल्लाह कह दिया, उन्होंने रजी अल्लाह कह दिया। हमें कोई परेशानी नहीं है, वो परेशानी इसलिए नहीं है हम क्या बुरा माने हर बेटे को हम अपने बाप की तारीफ करने का अपने बाप की तारीफ करे। अब तवज्जो रखिएगा, हर बेटे को हक हौसला है कि अपने बाप की तारीफ करे। अब अगर कोई रजी अल्लाह कहता है तो बुरा न मानिए, बल्कि खत्म निराश सोच कर कहिए आप इधर रहिए, ये हुसैनियों का इलाका है। इमाम से खत खींच कर गए, एक यजीदियों का इलाका, एक हुसैनियों का। इस पर गौर कर ले, आप आगे बढ़िए। यजीद जो खलीफा, अच्छा मैं अगर तफसील से बयान करने लगा तो बहुत ज़्यादा वक्त हो जाएगा, शॉर्टकट में आपको सुना देता हूँ एक सारा वो जो मवाद सुन ले आप। यजीद जो खलीफा बना है ये गासिबाना, इससे पहले इनके जो अब्बा बने थे वो भी गासिबाना। क्योंकि आप अहद पैमान को पढ़िए, जो सुलहनामा लिखा गया है उसमें यही तय पाया था कि अब बनु उमैया से कोई भी खलीफा, मेरे पास सारे हवाले मौजूद है, देख लो तो सुनिएगा इंशाल्लाह। आप टेंशन ना लें, कोई पूछे किस तालिब इल्म का हवाला दीजिएगा, हवाला देंगे। जो बनाया गया है वो शहदो पैमान को तोड़ने के बाद बनाया गया है, जो सुलहनामे में लिखा गया। लिखा क्या गया का इसके बाद कोई भी दरसे फरमाइएगा कोई भी खलीफा नहीं बनेगा। जब खिलाफत जाएगी तो बड़ी हाशिम में जाएगी। अगर हुआ ये कि गासिबाना हमला हुआ और क़यामत होगी, इन्हीं की किताबों में इब्न हजर मक्की क्या क़यामत की इसने कहा कि जब इसका इनके अब्बा का, यजीद के अब्बा का नाम ही लेना चाहता था, इनका वक्त आखिर करीब आया तो इन्होंने कहा कि मैं, अब गौर फरमाइएगा जरा, मैं राह रास्त पर आ सकता था, मैं हिदायत पा सकता था, मगर मेरे बेटे की मोहब्बत ने मुझे दबो दिया। अगर मुजफ्फरनगर में इन जुमलों को दाद न मिली तो दुनिया में कहाँ पढ़ूंगा जाकर। हिदायत पा जाता मगर मेरे बेटे की गौर करिएगा, मगर मेरे बेटे की मोहब्बत मुझे लोगों की हड्डी अल्लाह ही नहीं समझे। अरे किसकी मोहब्बत उसके बाप को नहीं बचा सकी, तुम्हारे बाप को क्या? सवाल कर दे मोहम्मद आप सलामत रहे। आप पूरा साथ दे रहे हैं, मैं थका हुआ, आप उतने फ्रेश हैं। जिसकी मोहब्बत उसके बाप को नहीं बचा सकी तो वो जिसका तुम डंका बजा रहे हो रज़ी अल्लाह, उसकी मोहब्बत तुम्हारे बापों का क्या आलम करेगी। तो ये जो बना है बिल्कुल गासिबाना तौर पर। अब इसकी एक दलील और सुन लिया, वो दलील ये है कि जब इसका बेटा माविया सानी यजीद के बाद खलीफा वक्त बना, इसकी खिलाफत का ऐलान हुआ। तारीख में लिखा कि उस वक्त मर्ज में मुब्तला था, ये मरीज था, बिस्तरे मर्ज पर था जब इसे खिलाफत मिली। अब तारीख ने लिखा कि खिलाफत मिलने के बाद अब ये जब तवज्जो करेगा, बहुत तवज्जो, जब ये पहली मर्तबा इस तख्ते खिलाफत पर आया तो मेंबर पर आने के बाद जो सबसे पहला जुमला कहा है वो ये था कि मैं ठोकर मारता हूँ उस खिलाफत में, उस हुकूमत में, उस इक़्तिदार को जिसकी आस्तीन आले मोहम्मद के खून में रंगीन हो। उस खिलाफत में जिसकी आस्तीन पर आले मोहम्मद का खून है। और मैं मुआविया इब्ने यजीद इब्ने मुआविया इस मिंबर से ऐलान करता हूँ, मेरा बाप भी गासी, मेरा दादा भी गासी। दादा भी गासी। ये किसका बेटा था? ये बेटा किसका था? ये जिसका बेटा था ये थी अतबा की पोती। ये अतबा की पोती थी जिसका ये बेटा था। और ये तवज्जो फरमाइए, ये अतबा की बेटी है जिसका ये बेटा है। इसने जब मिंबर पर जाने के बाद, बहुत तवज्जो, इसने जब मिंबर पर जाने के बाद कहा मैं उस हुकूमत को ठोकर मारता हूँ, उस खिलाफत को ठोकर मारता हूँ जो गासिबाना तरीके से आले मोहम्मद
पर्दे के पीछे से इसकी माँ ने आवाज गलत की, अच्छा होगा मैं तुझे पैदा ही न करती, मैं तुझे पैदा ही न करती। इसने ये जुमला खत्म किया, इसने जवाब दिया अच्छा ही होगा कि तू मुझे पैदा न करती, अच्छा ही होता कि तू मुझे पैदा न करती। कम से कम ये जमाना मुझे यजीद का बेटा बनाना था। आप यकीन जानिए ये नारे और ये सलावत और ये बात ये थकन की वैक्सीन होती है, समझ रहे हैं? ये थकन की वैक्सीन होती है। इसलिए बहुत अच्छा माशाल्लाह बोल रहे हैं, इसी तरह से वैक्सीन देते रहिए ताकि बात आगे बढ़ जाए। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बातें आप तक पहुँचा कर जाऊँ इंशाल्लाह इसी आवाज़ में और इसी थकन के साथ साथ। तो इसलिए क्या कहा, अच्छा होता कि तू मुझे पैदा ही न करती, अच्छा होता कि तू मुझे पैदा ही न करती। कम से कम ये जमाना मुझे यजीद का बेटा तो न कहता। अब गौर करिए, अब जो जुमला आ रहा है ना उसका इस्तेमाल होना चाहिए और पता चलना चाहिए कि यहाँ मुजफ्फरनगर की सरजमीन पर मजलिस हो रही है, पर इसका इस्तेमाल करना। इसने तख्ते खिलाफत और मिंबर पर आने के बाद क्या कहा, तो मैं ठोकर मारता हूँ। ये तो बिल्कुल आम बातें हैं, आम बातों में पुरानी बातों में 14 साल गुजरे, सारी बातें पुरानी ही है। आप किसी खतीब को ये कहकर रिजेक्ट ना करें कि मौलाना ने तो पढ़ी पढ़ाई पढ़ी है, नहीं पढ़ी पढ़ाई होती है, सब बातें 1400 साल पहले हो चुकी है, ज्यादा उन्हें पढ़ा जा रहा है। हाँ, पुरानी बातों से अगर नई बातें न कर पाए तो फिर हम नए जमाने के खतीब कह सकते हैं। इसलिए पुरानी बातों में से हम नई बातें सुनिए आप। इसने मिंबर पर आकर कहा कि मैं ठोकर मारता हूँ उस खिलाफत को जिस पर गासिबाना हमला किया। मेरे बाप ने, मेरे दादा ने, मेरे बाप ने, मेरे दादा ने जिस पर गासिबाना हमला किया, इसका मतलब ये है कि ये बेटा यजीद का बेटा बताना चाहता है कि मेरा बाप भी गासिब था, मेरा दादा भी गासिब था। पाकिस्तान लेकर चलता हूँ आपको, मेरा बाप भी गासिब था, मेरा दादा भी गासिब था। यहाँ पर ऐलान करना है ये भी गासिब वो भी गासिब। अब भैया कयामत हो गई। अरे जो यजीद का जायज बेटा है वो तो कहता मेरा बाप गासिब था, ये क्या जायज वाला जो कहती है रजी अल्लाह मगर चूंकि हक की मारिफत रखता है, हक की पहचान रखता है, इसलिए कह रहा है यही तो है कि ये तो गासिबाना हमला किया गया। तो बात जो पहुंचाना है वो बात और नुक्ता इत्तेदाल और महवर गुफ्तगू ये जुमला है कि इमाम ने ये कहा कि मैं उम्मत की इस्लाह के लिए कर रहा हूं। यजीद पर तो खतमल्लाहु अला उलूबे, इन पर तो मोहर लग गई है, इनका कुछ नहीं बनने वाला है, लिहाजा उम्मत को सुधार लिया जाएगा। अच्छा, उस वक्त से रसूलुल्लाह मेहनत करके चले गए, उसके बाद हजरत अली आए, उसके बाद इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम सज्जाद, इमाम बाक़र, इमाम सादिक, इमाम काज़िम, पूरा सिलसिला ये सब उम्मत को सुधारने की कोशिश कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, कर रहे थे नहीं कर रहे थे, सब ने की भरपूर कोशिश की। तो क्या उम्मत सुधरी? सुधरी है, सब न सुधरे हो, बात सुधर गए। दलील दो, अगर सुधरी न होती तो ये फर्शे उतरना पीछे होती। अरे गौरी नहीं किया सुधरने का असर न होता तो ये फर्शे नजर आता आपको, ये सुधरने ही की अलामत है। सुधरे तो है, हम सुधरे तो है, बस एक बहुत पुराने खतीब थे गुलाम अली खान साहब गाँव से जाहिर जिला कहकर गए थे कि हमारी कौम बेअमल नहीं है, बेखबर है, इसे तवज्जो करानी है, गौर करानी है, गौर बढ़िया तवज्जो करानी है, बेअमल नहीं बेखबर है।
जिस दिन ये खबरदार हो गई, जिस दिन ये खबरदार हो गई, न फिर कोई यजीद को रजी अल्लाह कहने वाला निकलेगा। जिस दिन ये खबरदार होगी, उस दिन सारे मामले, सब मामले पूरे बेहतरीन तरीके से बेहतरीन हालात में होंगे। मगर हमें काम करने की जरूरत है। और करिए आप वाला सलामत रखिए हमारे हुसैन रजा भाई को, एक बेहतरीन मुबल्लिग और बेहतरीन खतीब। इनके हर मजालिस में आपने न जाने कितने कितने पैगाम लिए होंगे। मैं भी एक छोटा सा तालिब का तो पैगाम हो सकता है कि आपको देकर चला जाऊँ। हमें गौर करने की कोशिश करनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि अगर गौर नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। भाई मजलिसों में आना तो बड़ी बात थोड़ी है, मजलिसों में आकर यहाँ से कुछ लेकर जाना कमाल है। वाह फरमाया, चूंकि फर्शे आधा तो मजा लेने की जगह नहीं है, ये इंटरटेनमेंट की जगह नहीं है, ये फर्शे आधा मुकद्दर संवारने की जगह है। ये मुकद्दर संवारने की जगह है। यहाँ खुलूस से सर झुका कर आइए, हुसैन आपको हुर बना देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस तरह से पढ़ूँ तो आप इस तरह से सुनिए। मैं तो थका हुआ हुसैन आपको हुर बना देंगे। काम कहाँ करना है हमें, गौर कहाँ करना है, फिक्र कहाँ करना है। हमें फिक्र उन लम्हात में करना है कि जिन्हें हमने अपना नमूना अमल माना है, आइडियल माना है, उनसे कुछ लेने की कोशिश करना। मगर मुझे माफ कीजिएगा, अजब हालात है इस वक्त में हमारी कौम के और बिल्कुल हमारे नौजवानों के। ये हमारी कौम के नौजवान, हो सकता है कि उसमें मैं भी शामिल हूँ, इस वक्त हमारी कौम के नौजवानों का मिजाज लोमड़ी मिजाज हो गया। लोमड़ी मिजाज हो गया का वो कैसे का ये जहाँ आती है कौम की बारी, जहाँ आती है जबान चलाने की बारी, जहाँ आती है बोलने की बारी, वहाँ सीना तान कर कहते जहाँ आती वहाँ हम। आपको बोलना पड़ेगा इन जमने का, वहाँ हम। मगर जहाँ फेल की बारी आती है, किरदार की बारी आती है, अमल की बारी आती है, सर झुका के कहते हैं कहाँ अली और कहाँ हम। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। कहाँ अली कहाँ हम, अजब मिजाज बन गया है हमारे नौजवानों को। वो अली में नजर आ रहा है कि कोई पर बाबा खबर कोई को आ रहा है, वो अली नजर नहीं आता तो यहूदी में वहाँ मजदूरी कर रहा है। अच्छा, आप मेरे जुमले से ये भी ना समझ लें कि मैं खैबर का मुनकिर हूँ। खुदा की कसम, मेरा अकीदा तो आपसे 4 हाथ आगे है। मेरा अकीदा तो ये कहता है कि बाबे खैबर को उखाड़ना, बाबे खैबर को उखाड़ने के लिए अली को 2 उंगलियों की भी जरूरत नहीं है। मेरा अकीदा तो ये है कि अली कह दे तो खैबर उखड़ जाए, अगर कह दे तो खैबर उखड़ जाए। मगर हमारी बदकिस्मती है कि वो तो नजर आ रहा है, ये नजर नहीं आ रहा। एक जुमला सब करता हूँ, वो अली को नजर आ रहा तो बाबा खैबर को उठाए हुए है, वो अली नजर नहीं आता जो यहूदी के यहाँ मजदूरी कर रहा है। हमें खैर को नजर आता है जो मैदान जंग में मुस्कुरा रहा है, वो अली नजर नहीं आता जो मेहराब इबादत में आंसू बहा रहा है। वो अली नजर नहीं आ रहा है जो मैदान जो मेहराब में आंसू बहा रहा है। याद रखिए, अली होकर बाबा खैबर को उखाड़ना कमाल नहीं है, अली का अली होकर मीज़न की दुकान पर बैठना कमाल है। तो सवाल मुझे मोहब्बत जिंदा या रसूल अल्लाह, अली का अली होकर बाबे खैबर में उतारना कोई बड़ी बात नहीं है। अली का अली होकर मिशन की दुकान पर बैठना कमाल है। फिर वही बात कहूँगा, बातें तो सब पुरानी है, मगर अगर नतीजा नया हो तो ले जाइए। अली मिशन की दुकान पर बैठे, सबको पता है, तो सोच रही अली मिशन की दुकान पर बैठे, आगे आए टूटी हुई तकदीर लेकर कुछ छोटे सीखे लेकर अली के पास। मैं गौर कर रहा हूं, टूटी
तकदीर और टूटे हुए सिक्के और छोटे सिक्के लेकर अली के पास आ गया। अली दुकान पर बैठेगा, या अली खजूर कर दीजिए, या अली खजूर अता कर दीजिए। इमाम ने कहा तो सही सिक्कों को लेकर रखा, सिक्कों को लेकर रखा, खजूर दे दी, खजूर हटा की, सिक्कों को रख लिया। कुछ देर के बाद मीसम आए, पैगाम लेकर जाइएगा। कुछ देर के बाद मीसम आए। जैसे ही मीसम दुकान पर आए, अली ने वो सिक्के उठाए, मीसम के हवाले करके कहा, मीसम ये आज के वो सिक्के हैं कि जिनकी मैंने हुजूरों को फरोख्त किया है। अली से मीसम को सिक्के नहीं दे रहे, बल्कि आने वाली नस्लों को पैगाम दे रहे कि याद रखो, अगर दूसरों का हक आप पर आ जाए, अगर दूसरों का हक आप पर है तो पहली फुर्सत में अदा कीजिए। मौला ने सिक्के मीसम को दे दिए। मौला ने सिक्कों को अता किया मीसम को। अब मीसम ने जैसे सिक्कों को देखा, देखने के बाद हैरान हो गए। तो मौला है मेरे मौला, ये दो खोटे क्या अली को नहीं पता था इसी के खोटे हैं? बताइए भैया, क्या अली को नहीं पता था? या बात दूसरे लफ्जों में समझाई जाए, अरे बिखरी तलवार 7 नस्लों को देख लेती है, क्या उस अली को नहीं पता था इसी के खोटे? पता था, इसका मतलब पता था। तो पूछा क्यों? कब पूछा? इसलिए कि ताकि बात हम तक पहुंच जाए, इसलिए पूछ लिया। सिक्के अता करके कहा, ये आपके वो सिक्के कि मैंने हुजूर रखो मीसम। मौला ने मीसम को सिक्के अता किए, सिक्के थे खोटे। अब ये कुछ दूर चला था जो हुजूर लेकर गया था, ये कुछ दूर चला था, चाहता है कि हुजूर को खाए, मगर जैसे ही दहन में रखा, क्या देखा है तो हराम है। तवज्जो नहीं किया आपने, हुजूर तो बिल्कुल खराब थी। एक मरतबा मौला कहते ये इसने हुजूरों को देखा, वापस पलटा, एक जुमला सुनने उसके बाद दूसरा जुमला, ये हुजूरों को लेकर वापस पलटा। हो सकता है बहुत मरतबा अपने बात सुनिए, मगर जुमला तो नतीजा देना है, हो सकता है कि नया हो। खजूर लेकर पलटा था, यानी ये तो खराब है, ये खजूरें तो खराब है, ये खजूरें तो खराब है। मौलाना का सिक्के अच्छे दिए होते तो खजूर अच्छी मिलती, अगर सिक्के अच्छे दिए होते, अच्छे अदा किए होते तो खजूर अच्छी मिल जाती। आपने अपनी आपने अपनी तरफ से नहीं की। अरे जाति में अली करने वाले मैसेज तो यही लेना है, पैगाम तो यही लेना है। अरे जो अली खोटे सिक्कों के बदले अच्छी खजूर नहीं देता है, वो खोटे अमाल के बदले तुम्हें जनता क्या सवाल करने में का मुकदमा है जो जुमला आने वाला है। हम तब समझिएगा, जो अली खोटे सिक्कों के बदले अच्छी खजूर नहीं देता, वो खोटे अमाल के बदले जन्नत ना से दे देगा, हो ही नहीं सकता। जन्नत कैसे दे देगा? बात खत्म। दूसरा जुमला सुनिए, हो सकता है कि जुमला इससे वजनी हो, इस पर गौर करना बहुत जरूरी है। जैसे ही मीसम को मौला ने ये सिक्के अता किए, सिक्के खोटे, तो मीसम ने सवाल किया, मौला आप जानते थे कि ये खोटे सिक्के लेकर आया है, आपने फिर भी खजूर अता कर दी। तवज्जो करिए, आपने फिर भी खजूर अता कर दी। मौला मुस्कुराए, तवज्जो करिए, मौला मुस्कुराए। का मीसम सुनो, हम जमाने में कयामत तक के लिए एक फैसला सुनाकर जाना चाहते हैं, एक कानून बनाकर जाना चाहते हैं कि याद रखो, हम हमें उस वक्त में किसी को जलील नहीं करते जब तक वो खुद जलील होगा।
جب تک وہ خود ذلیل ہونا نہ چاہے. یہ تو کردار ہے اہل بیت کا. ایک ہم ہیں, ہماری زندگی ہی اسی خاک میں گزر رہی ہے کہ کم موقع ملے کہ فلاں کو ذلیل کر دیں. اسی گھاٹ میں گزر رہی ہے کہ کب فلاں کی بے عزتی کر دیں. بہت بڑا جملہ جو سب کرنے جا رہا ہوں, کب فلاں کی فلاں جگہ پر بے عزتی کر دیں. یاد رکھیے, ہو سکتا ہے کہ فوری طور پر, وقتی طور پر, عارضی طور پر آپ اس کی بے عزتی یا ذلیل اسے کر دیں, مگر یاد رکھیے آپ اسے ذلیل بعد میں کرتے ہیں. 70,000 ملائکہ آپ پر لعنت پہلے کرتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس لیے چونکہ ہمارے ساتھ ایک ٹیگ بھی لگا ہوا ہے نا, سادات, شیعہ, محب اہل بیت, حسین کا چاہنے والا, حسین کا ماننے والا. اس لیے آپ کی سوچ, آپ کی تھنک ہمیشہ پوزیٹیو ہونی چاہیے. اگر آپ کے متعلق کوئی برا بھی سوچ لے تو یہی سوچ کر سوچنا چھوڑ دو. یہی سوچ کر سوچنا چھوڑ دو کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی غلط فہمی کا شکار ہو گیا ہو. اس نے ذہن کیا تو مشکلات کہاں سے آئی؟ مشکلات یہاں سے آئی کہ ہمیں وہ علی تو نظر آ رہا ہے, پھر ادھر ہی آ گیا, وہ علی تو نظر آ رہا ہے جو در خیبر کو کھوڑ رہا ہے, وہ علی نظر نہیں آ رہا ہے جو یہودی کے باغ میں مزدوری کر رہا ہے. یہودی کے باغ میں جو مزدوری کر رہا ہے, آپ اس بات پر غور کریں کہ اسے اللہ نے دونوں جہان کا مختار و مالک بنا کر بھیجا ہو, وہ یہودی کے یہاں مزدوری کیوں کر رہا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آج کا مجلس کا محصل یہ جملہ ہو جائے. وہ علی کے جسے اللہ نے کونین پر تصرف عطا کیا ہے, وہ یہودی کے یہاں مزدوری کیوں کر رہا ہے؟ وہ یہودی کے یہاں مزدوری کیوں کر رہا ہے؟ یاد رکھیں اور برا لگے تو مجھے معاف فرمائیے گا, علی یہودی کے یہاں مزدوری اس لیے کر رہا ہے کیونکہ علی یہودی کے یہاں مزدوری کر کے قیامت تک آنے والے شیعوں کو یہ سمجھا کر جانا چاہتا ہے کہ یاد رکھنا علی محنت کرنے والے کا مولا ہے, مفت خوروں کا مولا نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل علی محنت کرنے والوں کا مولا ہے. جو مفت کی تلاش میں رہتے ہیں نا, تب کوئی نہیں لینا نہیں علی سے, چونکہ انہوں نے علی کی صورت کو سمجھا نہیں ہے. علی تو محنت کو پسند کرتا ہے. آپ محنت کریے, اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ اتنی محنت کریے کہ اللہ ہماری قوم کے ہر جوان کو انجینئر بنائے, ڈاکٹر بنائے, IAS آفیسر بنائے, اس سے بڑے عہدے پر پہنچائے, بہترین ایڈوکیٹ بنے, بہترین جج بنے. آپ خاموش ہیں, میں اپنی تعریف کر رہا ہوں. ہماری قوم کا ہر جوان ایک بڑے سے بڑے عہدے پر پہنچے, اچھا پڑھے, اچھے عہدے پر پہنچے اور اچھا کمائے. غور کریے گا, جوانوں کے لیے جملہ سب دیتا ہوں, اچھا پڑھے, اچھا عہدے پر جائے اور اچھا کمائے. کیوں؟ اس لیے کہ اچھا کمائے گا تو اچھا زکاری پر خرچ کرے گا نا. اگر اچھا کمائے گا تو زکاری پر خرچ کرے گا نا, اگر ہوگا ہی نہیں تو خرچ کہاں سے کرے گا؟ اس لیے اللہ ہم سب کو اچھے عہدوں پر پہنچائے اور اچھی کمائی ہو, اچھی تکسب کرے. اس لیے ایک حدیث اور سن لیں آپ, مولا حضرت امیر المومنین نہج البلاغہ کا صلوات پڑھتے ہیں. مولا کا بڑا برس, اللہ تشریف فرمائے, بڑا برس والے مولا نے فرمایا لیس الزہد ان لا تملک شیئا بل الزہد ان لا یملک شیئا. غور کریے گا, توجہ فرمائیے گا, ترجمہ کرتا ہوں بچوں کے لیے, بڑی اہم حدیث ہے آج کے دور کے لیے. مولا فرماتے ہیں کہ زہد, جو جانتے نا یعنی تقویٰ, بردباری, اللہ کے نزدیک ہو جانا. امام فرماتے ہیں کہ زہد یہ نہیں ہے, زہد یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ خریدیں ہی نہیں. محسوس کریں آپ بات, زہد یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ خریدیں ہی نہیں. زہد یہ ہے کہ چیزیں آپ کو نہ خرید لیں. یہ نہیں ہے زہد کہ جیب میں پیسہ بھرا ہوا ہے, بینک میں جگہ نہیں ہے, گھروں میں رکھنے کی جگہ نہیں ہے, مگر کنجوسی مرے جا رہے ہیں. کہا نا خریدیں گے نہیں.
मौला चाहते हैं कि आपके पास अच्छा घर हो, अच्छा लिबास हो, अच्छी सवारी हो, अच्छी ग़िज़ा हो, सब कुछ हो मगर हलाल तरीके से हो। हलाल तरीके से हो। इसलिए इमाम यहूदी के यहाँ मजदूरी कर रहे हैं ताकि हमारे आने वाले शिया को कभी मजदूरी करने में जलालत महसूस न हो। अच्छा, हो सकता है कि बात इस तरह नहीं तो दूसरी तरह पहुंच जाए। वो जानते हैं दूसरी तरह किस तरह? एक दूसरा फन होता है, हालांकि मैं शेर पढ़ता नहीं मजलिस में, अल्लाह ने इस फन से नवाजा जरूर है, मगर इसमें थोड़ा सा गुरेज करता हूँ, पढ़ता नहीं। मगर हो सकता है कि बात इस तरह से बच्चों तक और जवानों तक जल्दी पहुंच जाए। बेहतर मुतवज्जो रहिए, आप इधर ना देखिए, हो सकता है जल्दी पहुंच जाए। क्यों कर रहे हैं इमाम मजदूरी? सुनने के लिए आवाज है तो बता दूं, अगर इस तरह नहीं पहुंचनी बात तो इस तरह से हमें हर बात और हर मर्तबा तवज्जो और गौर करना कि मौला यहूदी के यहाँ मजदूरी क्यों कर रहे हैं। हो सकता है कि इस शेर से मैं आपको समझा दूं कि मौला मजदूरी क्यों कर रहे हैं। उससे पहले दो शेर सुन ले आपने, शेर पढ़ता नहीं होता, मगर चूंकि जहन में आ गया और मौजू भी है, और ये सुबैनी साहब ये लेटेस्ट कलाम है, लिख लीजिएगा, स्टेटस करते हैं। ये लेटेस्ट कलाम है, इसलिए पढ़ भी देता हूँ, सुन ले आप कि शहीदी से जो उल्फत कर रहे हैं, तवज्जो में, शहीदी से जो उल्फत कर रहे हैं, अदा अजरे रिसालत कर रहे हैं। शहीदी से जो उल्फत कर रहे हैं, अदा अजरे रिसालत कर रहे हैं। और ये शेर मेरी माँ बहनों तक पहुँचेगा और उनके बच्चों तक पहुँचेगा। इसके बाद इंशाअल्लाह वो ऊपर अमल पैरा होगा। शहीदी से जो उल्फत कर रहे हैं, अदा अजरे रिसालत कर रहे हैं, मक्का अपना जन्नत कर रहे हैं, अपना जन्नत कर रहे हैं, जो अपनी माँ की खिदमत कर रहे हैं, मक्का अपना जन्नत कर रहे हैं। अच्छा, मेरे में तमीज में बढ़ गया शेर तो मुझे वो सुनाना, जिसके बाद पहुंचाना वही शेर पढ़ना, मगर ये भी सुन ले, आपको शेर माहौल बना होगा तो शेर सुन ले। मक्का अपना जन्नत कर रहे हैं, जो अपनी माँ की खिदमत कर रहे हैं। आप जानते हैं माँ की खिदमत का सवाब कितना जानते हैं? माँ के पैरों में अल्लाह ने जन्नत को रखा है, तो अब जन्नत में किताबों में तलाश करने से पहले माँ के कदमों में ढूंढ लेना। जन्नत कर रहे हैं, मक्का अपना वो जन्नत कर रहे हैं, जो अपनी माँ की खिदमत कर रहे हैं। इस पर तो आप बिल्कुल खामोश रह जाएंगे, पूरा यकीन है। जो अपनी माँ की खिदमत कर रहे हैं, वो ज़हरा से बगावत कर रहे हैं, ज़हरा से बगावत कर रहे हैं, जो मजलिस में सियासत कर रहे हैं, ज़हरा से बगावत कर रहे हैं, जो मजलिस में सियासत कर रहे हैं, हरी से माल कुछ पैसों की खातिर शरीयत में शरारत कर रहे हैं। अब शरारत जिसके लिए मुझे अपनी बात पहुंचाना थी, हरी से माल, हरी से लालची, हरी से माल कुछ पैसों की खातिर शरीयत में शरारत कर रहे हैं। कोई समझे न मजदूरी को जिल्लत, कोई समझे न मजदूरी को जिल्लत, अली की मिलाद मेहनत कर रहे हैं। सलात कर मोहम्मद बहुत शुक्रिया कि आपने इतने खस्ता हालत में भी मुझे इतना तरह तासीर के साथ सुन लिया। मैं मशहूर रहूँगा आपका। तो गौर करना है इस बात पर कि अहले बैत अलैहिस्सलाम कौन सा तरीक और कौन सा मनहज और कौन सा रास्ता ऐसा है, कौन सा सालीब ऐसे हैं जो हम तक छोड़ गए हैं, जिन पर हमें गामजन रहना है। अगर हम उन पर गामजन रहे तब करबला समझ में आएगी। क्यों? इसलिए कि करबला तस्बिल फर्शे अज़ा बिछा कर मजलिस से कर लेने का नाम, और 10 दिन में आंसू बहाकर करबला को समझ लेना काफी नहीं है। क्यों? इसलिए कि करबला को समझने के लिए कम से कम हमें हुर होना पड़ेगा, कम से कम हुर होना पड़ेगा। आप हुर वो करबला वाला हुर नहीं बन सकते, मगर हुर पर माना लोगों को हो सकते हैं।
माना लुगत तो हुर हो सकते ना, हुर कहते हैं आजाद को। क्या मतलब ये कि हसद से आजाद होंगे तो करबला समझ में आएगी, पाक होंगे तो करबला समझ में आएगी, गुरूर से दूर होगा तो करबला समझ में आएगी, रहने का जज्बा होगा तो करबला समझ में आएगी, मोहब्बत का जज्बा होगा तो करबला समझ में आएगी, मोहब्बत हमारे दिल में हो तो करबला समझ में आएगी, अगर आजाद होंगे तो करबला समझ में नहीं आएगी। क्यों? इसलिए कि करबला तो सभी गए हैं, जाते सभी, मगर क्या करबला सबने समझ ली? करबला में तो वो भी थे जो इमाम के मद्दे मुकाबिल पर खड़े थे, लेकिन क्या उन्हें करबला समझ में आ गई? और करबला को समझे? कतल नहीं समझे, हर किसी को करबला को नहीं समझे, और न करबला को समझे ना उन ज़वात मुक़द्दसा को समझे जो करबला पर पहुंची थी। इमाम ने जुमला कहा था ना निकलते हुए, इन्नमा खरजतु लितलबिल इस्लाह फी उम्मत जद्दी। मैं चाहता था कि जब करूँ मगर बात दूसरी तरफ चली गई। खैर वो भी इबादत है, इनका जिक्र चाहे जिस सादी से कीजिए आप इबादत ही होता, चाहे जैसे कर ले वो इबादत ही होता। करबला और करबला वालों को समझने के लिए हमें हर वक्त तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि गफलत में सोने वालों को कभी करबला समझ में नहीं आएगी। वो इसलिए कि आप तारीख को उठाकर पढ़िए कि न जाने कितनी तादाद में ऐसे मुसलमान थे जो शहादत इमाम हुसैन के बाद ये कह रहे थे हमें पता ही नहीं चला कि हुसैन कब मदीने से करबला चले गए, हमें खबर ही नहीं हुई कि हुसैन ने कब नाना के मज़ार को छोड़ दिया। न जाने कितने ऐसे थे जो शहादत के बाद ये कह रहे थे हमें पता ही नहीं चला कि हुसैन के साथ करबला में हुआ क्या है। आप देखिए तो करबला को अगर समझना है तो उन लम्हात के साथ समझिए जिस तरह हुसैन करबला में समझाना चाहते थे। हमारी जान कुर्बान हो जाए उन छोटे छोटे बच्चों पर जिनके जज्बे को देखकर तारीख पसीने आ गए। कौन से ऐसे बच्चे थे जो अपने बहुत कमसिनी के आलम में इमाम की खिदमत में जा जाकर इजाजत तलब कर रहे हैं। क्या 7 साल के बच्चे में जज्बा आ सकता है कि वो इमाम से कहे कि मुझे मरने की इजाजत दे दे? क्या 13 साल का बच्चा ये कह सकता है कि मुझे मरने के लिए जाना है? ये जज्बा उसी वक्त आता है कि जब हुसैन को होके के तौर पर अपने दिल में उतार लिया जाए, जब हुसैन की मोहब्बत को अपने दिल में उतार लिया जाए। और हुसैन के मुकाबले में देख तो हुसैन को वो भी रहे थे जो हुसैन पर तीर बरसा रहे थे, हुसैन के बच्चों पर तीर बरसा रहे थे, हुसैन के ख़याम को लूट रहे थे। खुदा आपको कोई हुक्म न दे सिवाय हमें मजलूम करबला के। खुदा आपके पुरसे को कबूल फरमाए, मौला आपके नासुओं को कबूल फरमाए, आपके नासुओं को शहजादी के रुमाल में जगह मिले। मुसलसल आपने 10 दिन क्रिया किया, मौला पर आंसू बहाए, शहजादी आपके इन आंसुओं को कबूल फरमाए। अगर मुझ में ताकत रही तो बस एक रिवायत उस वक्त की पढ़ना है कि जब सैयदुल शुहदा मैदान में जा चुके, कासिम अकबर के लाशें ला चुके, औले मोहम्मद की लाशें दस्त ला चुके, हुर्रे जो हबीब का लाशा इमाम हुसैन ला चुके, मुस्लिम मिनों की लाश को उठा कर ला चुके, और ये तनहा रह गए। और उसके बाद एक मंजिल वो आई कि मजलूम करबला भी करबला के मैदान में जाकर खुदा की राह में अपनी जान को कुर्बान कर चुके। अब तन्हा ज़ैनब है, यतीमों का काफिला है, हस्बे वसीया बच्चों की निगरानी में ज़ैनब बच्चों को धारक देकर कहती है ऐ बच्चों घबराने की जरूरत नहीं है। अरे क्या हुआ अगर मेरा भाई अजरकुम मिनल्लाह खुदा ने सिवाय भले मजलूम करबला के बस एक रिवायत पढ़ना कलेजा फट जाएगा। तसव्वुर करे क्या गुजरी आले हरम पर, अरे चली हुई खाक पर बच्चे बैठे हुए हैं, इधर से यतीम का लश्कर चलता है, खयाम की पामाली होती है। अजरकुम मिनल्लाह खुदा करबला के ठहर कर बार ये पढ़ता हूँ, रिवायत पढ़ता हूँ, आप पर सुनिएगा, दिल पर हाथ रखकर सुनिएगा। मेरी माँ बहनें सुने, वो सुने कि जिनके नन्हे नन्हे बच्चे उनकी आगोश में है। बाद शहादत हुसैन एक
ایک منزل ایسی آئی کہ جب خیام کو لوٹا جانے لگا، ظالم کبھی اس خیام میں جاتے ہیں، کبھی اس خیام میں جاتے ہیں، یہاں سے اسباب کو لوٹتے ہیں، وہاں سے اسباب کو لوٹتے ہیں۔ ایک ظالم جناب سکینہ کے قریب پہنچا، گوشواروں کو چھینا، شہزادی تڑپ گئی، اے میرے ابو، ارے کاش آپ ہوتے اور دیکھتے سکینہ پر کیسی ایذا گزر رہی ہے۔ اجرکم عند الزہرا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ ڈالے سوا غم مظلوم کربلا کے۔ خدا آپ کی آنکھوں میں کبھی سونا لائے سوائے اس غم مظلوم کربلا کے۔ میں بہت آہستہ سے ٹہل کر روایت پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دعا کرے مولا مجھے یہ قوت دے کہ میں اس روایت کو پڑھ سکوں۔ کیا قیامت کی روایت ہے، کیا قیامت ہو گئی، ہائے مصیبت، ہائے قیامت۔ ایک منزل وہ آئی کہ ایک ظالم خیمے کی طرف بڑھا اور چاہتا ہے کہ اس خیام میں جو بھی اسباب موجود ہے، جو سر سامان موجود ہے اسے لوٹ لے، مگر ہائے مصیبت، ہائے قیامت۔ جب یہ ظالم اس خیمے میں پہنچا، کیا دیکھتا ہے، کوئی سر سامان تو موجود نہیں ہے، مگر ایک شہزادی ہے کہ جس کے پاس کوئی مختصر سا سامان ہے، وہ اسے اپنے سینے سے لگا ایک کونے میں چھپی ہوئی بیٹھی ہے۔ ارے ظالم نے سمجھا، ارے ضرور اس کے پاس کوئی قیمتی شے ہوگی۔ ماتم گرنا کرے، شہزادی کو پرسہ پیش کرے، مجھ میں جتنی قوت ہے اتنی قوت سے روایت کرتا ہوں۔ شہزادی آپ کے ناصروں کو درجہ قبولیت عنایت فرمائے۔ روایت اور مختلف کے عجیب فکر ہے کہ اس ظالم نے سوچا کہ ضرور اس شہزادی کے پاس کوئی قیمتی شے ہوگی، چلو اس سے چل کر اسے چھینا جائے۔ ایک مرتبہ یہ ظالم بڑا چاہتا ہے کہ اس سامان کو شہزادی نواب سے چھین لے، مگر شہزادی ہے کہ دینے پر راضی نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ پھر چھیننا چاہا، شہزادی پھر پیچھے ہٹ جاتی ہے، پھر چھیننا چاہا، شہزادی ایک مرتبہ پھر پیچھے ہٹ گئی، مگر ہائے مصیبت، ارے مصیبت زدہ بی بی، کب تک یہ تنہا اپنا دفاع کرتی۔ اس ظالم نے اس سامان کو چھینا، اب تک یہ سوچ رہا تھا کہ کوئی قیمتی شے اس میں ہوگی، کلیجہ پھٹ جائے گا۔ جیسے ہی اس نے اس بکری کو کھولا، شہزادی طرف پر کہتی،